Yeah, you're audible. Yeah, so everybody is here for careers in esports, maybe. Yeah. Yes. Yes. Yep, Okay. yep. So hi guys, I'm Sahil. Yes. Hello. Yeah. Yeah. So How are I you? wanted to ask you guys a question before actually starting out. So anybody of you guys are looking to get become pro in esports? Maybe Yes. it could Yes. be any Yep. game. Yep. Yep. Yes, Yes. So how far are you? yep. Uh, 200 ping. newbie. 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 200. Okay. Okay. Silver player. Uh, I don't know, man, about which game you're talking about. Silver player in which game? Valorant, Valorant. Okay, okay, Valorant. Yeah. Okay, you have यहाँ a पे long way to go, man. I'm a GN2 in CS. Okay, cool, cool, cool. And anybody else? no. Okay, cool. So let me just share my screen, okay? So that we can talk more. Yes. Yes. 200 wager earnings. Okay, cool. That's good. Hey, actually, I am also from the Fortnite scene. Actually, I left it about a year ago, but yeah. So yeah, so we'll be talking about careers in esports and also the how to become an esports player and how to approach the organization for the sponsorship, because these three are the crucial things everyone asks. And I have seen like many people in my DMs just hitting me that they want sponsorship, they have this earnings or like this much achievement, and they are not a good application actually. That's the problem. So if You you are guys, from Kira. yeah. Uh, what you do in Kira? So I am the owner of Kira. Do I know you? No. All right. But I know So someone from Kira. okay, who? Abhishek Malik, I guess. Okay, Avem. Yeah, he's R6 one of our, player. yeah, he's one of our Ha. players in Rainbow Six. Yeah. So Uh, a little background about me before we start. So I started my journey in esport as a Fortnite player. I competed in Fortnite World Cup in Week 2 duos and attained 174th rank in European region at like 200 plus ping. So कितना hard होता है 200 plus ping पे खेलना, and somehow we mhm. managed to do that. दैट टाइम हमारे यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में यूनाइटेड स्क्रीम्स करके एक चलता था, एंड लाइक सम वी एक्चुअली मैनेज टू वर्क वेल देयर. Then about like year or so, then Middle East servers came in, and like a whole Fortnite scene started dying in India. So we thought that it's not good to actually just start in org here in the scene, because चला तो देंगे, will start paying the players, but like there was not a future potential in this, because brands जो अटैच हो रहे थे उसके साथ, तो दिक्कत क्यों आती, तो इसलिए हमने सोचा कि हम गेम स्विच करेंगे. So like about a month after that decision, me and my brother went to a tournament in Delhi, which was Rise of Legion hosted by Lenovo. Oh, And okay, okay. like from there, actually my brother said that we should actually look out for players in Rainbow Six because it's going to grow. And I Yeah. got an internal info from a guy who used to work with Team Liquid that time. That guy is Nishant Ahuja, if you guys know. He Oh, was the manager oh, of oh. Team Signify from the Dota 2 scene. Nishant Ahuja. Yeah. Yeah, yeah. I the, heard his he's name. he's one of my mentors. So he told me that Rainbow Six Siege is going to accommodate Indian scene into their like six invitational part. So we started like hiring some players, and we started testing out the scene, and like somehow we managed to land one team, and then like in a matter of 4 months we started Mm. achieving.
insane results with this, and we currently are the top, like in top three teams of like South Asia, and we actively scrim against like top notch pro league players, pro league teams in the Australia and like Southeast Asian region specifically. Hmm. Of which game? And Sorry. Rainbow Six Yeah. Siege, it's by Oh. Ubisoft. So enough about me. I'll go to the, like, you guys must know about esports actually. So esports is basically the electronic sports. Consider this as a standard sports for video games. That's the basic understanding about the esports. And like, why do you need to actually understand about the esports? It's because that it's one of the fastest growing industry in the world, like in terms of sports if we talk about. And like current valuation is like 1.2 billion USD. Apart from this, like India specifically is one of the fastest growing esports market in the world right now, followed by Africa, and then Brazil. Yeah, third one is Brazil. So that's why you should actually focus on esports, because it's actively growing, and you have seen the immense potential of this in, like, via PUBG Mobile. Although it's banned, but if you see Free Fire or Valorant, statistically, it's actually surreal. Also, like, it's a skewed info, but like, about as per the Newzoo report of 2019, Asia Pacific amounts to 57% of esports market. So you guys are in a great region to grow, and that's the reason why you see many foreign organizations just jumping right into the Indian scene and to the Southeast Asian scene, because their market is lot saturated, their audience is very low, her demand is very high, and like the competitors are pretty low. So that's why they feel like it's cheaper and efficient for them to make revenue out of it. I'll talk about the business part in the, like, next coming session, but we'll focus on this specifically. So market potential. As per the market potential is concerned, uh, just hold on. Just hold on. 2 seconds. Okay, so yeah, about the potential. If we talk about the potential, is that 36% of the gamer audience actually belongs to 21 to 35 age of group, and like approximately, if you talk about active players in India, is more than 300 million right now, and that was the data for the 2019 report of the Newzoo. Why I am taking Newzoo as a base report for every esports statistic is that it's one of the accredited statistics company. It's also hired by Team Liquid, so you, that actually assures me that it's one of the most credible sources for the data. Also, like, if we talk about the global market valuation, it's more than $90 million. In terms of, like, if we talk about the brand investment fundraising, so it counts as sponsorship, venture investment, etc. And $150 million in prize money in 2018 itself. And fun fact, about $47 million prize pool is there in Dota 2 currently, and it's basically the, it depends on the number of people who actually just buy the battle pass of that Dota 2 game. So as the people buy the battle pass, the prize pool for the Dota 2 tournament actually gets accumulated and increases over time.
So in India, it's like its industry value is more than 850 million USD. So that's why it's one of the good market. Okay. Now let's talk about career option in esports. Sorry for being really fast, but like I'm really on a like short time. So okay. In terms of like graphic designers, if we talk about, uh, let me just see if my screen is sharing. So I'll show you guys that what's the standard of esport graphics design. Sports. Okay, so this is Gaming. this yeah, esports and gaming based graphic designing. So this is one of the graphic designs for Sentinel's Valorant. Sentinel is one of the teams. If you know Booga from Fortnite World Cup, yeah. So that's the team you're talking about. So Phase. they Phase. Phase is also one of those. So I like this one. So I just got it there. So yeah, this type of graphic design is mostly done on like Source Filmmaker or like Blender or like Unreal Engine. You'll see if you know these three types of software. Like Source Filmmaker is the basic one, Blender is bit advanced, and Unreal Engine is like it's also good, but Unreal Engine is mostly used for VFX part of stuff. So if you talk about the team Liquid, Valorant one, so this is one of those examples where you will see how Unreal Engine is used to create such VFX stuff. It's one of the most impressive Valorant based montage that they made in this year in 2020. So this is also one of those like examples on like how you should actually think about making like graphics based content in esports. This is what is expected. This is the base on which every esport or org owner or esport team will actually talk to you if you're planning to get into graphic designs. So these are the examples. Now coming back to this, legal and finance. So it's one of the untapped markets, and honestly, there are thousands of players that I know, professional players who got cheated by many organization, many companies as such, and like there's nothing there. There's no legal body. There's no consultant specifically for esports there. And whenever you are even the companies, esport companies itself, like they don't know what's going on, what's right, what's wrong, and they have to consult like 5 or 6 legal people and like In the CAs thing, to actually hello. I think someone's mic is unmuted. Yeah, okay, cool. So I think if you're planning to get into, if you're from legal and finance streams, so you guys can actually provide your services in this part as well. You can go to Fiverr. It's one like it's good for any freelance based gig, but like you need to be certain about the rules and the things which you actually consult these guys, because even let's slightest mistake can actually get them into big troubles. Like I can't give you a good example because it's not getting into my mind. So, but I'll just provide something in after the session is done to actually give you a further insight on this. I'll give it to you. Sales, in terms of sales, mostly you'll be getting recruited in an organization, and you'll be handling their sales and merchandise. So it's one of those stream where esports team actually sell this the merches to the fans. That's one. Second is like any other product, say like if you know about eFuse is actually trying to connect cryptocurrency with the esports, and it's also integrating betting in the background as well. So there's some sales part over there as well. So there are multiple things in the market. You can try to go and get into the sales and just explore it more, but
honestly, I don't know much about the sales. I have my guy who actually does this part for me. Uh, for the sponsorship activation, basically you are only looking for two types of sponsors. First is endemic brands and non-endemic brands. And इन एंडेमिक ब्रांड्स बेसिकली इफ बेसिक इसको ना आराम से समझने के लिए बोला जा सकता है कि जो ब्रांड्स इसी नीश से रिलेटेड है, से कि गेमिंग बेस्ड प्रोडक्ट अगर एजस बनाती है, सो एजस इज वन ऑफ दोज एंडेमिक ब्रांड्स. बट इफ आई टॉक अबाउट सम लाइक ऑयल बेस्ड कंपनी, अब वो है कि कर सकती है कोशिश if अगर उनका कुछ मैच करता है मार्केट, बट वो नॉन एंड ब्रांड कहलाएगी बिकॉज दे आर नॉट कंप्लीटली रिलेटेड टू ई स्पोर्ट्स और इवन लाइक पार्शियली रिलेटेड टू ई स्पोर्ट्स. सो इसमें एंडेमिक ब्रांड्स को लाना ज़्यादा आसान होता है एंड लाइक नॉन एंडेमिक ब्रांड्स को लाना मुश्किल होता है, बिकॉज वही बात है कि endemic brands have this power to just get to a content creator and just show this thing कि अगर एक pro use कर रहा है and someone is following that guy, say कि if you're following Right to Ace in Valorant and if he actually promotes this like NZXT products and HyperX keyboards, you'll also buy that thing. So वो उस mindset से चलता है. Sponsorship basically marketing है and if you're providing any benefit to those guys, like in terms of sales, you'll always crack this sponsorship. In terms of developers, तुम्हारा mostly काम ऐप बेस्ड होगा. जैसे टूर्नामेंट्स के जैसे गेमरजी एक है, गेमरजी एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग प्लेटफॉर्म है जो बाकी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइजर्स को यानी कि एक आराम से एक कॉम्पिटेंट प्लेटफॉर्म दे देता है जहाँ पे यू गाइस कैन जस्ट पोस्ट योर टूर्नामेंट्स एंड they'll charge a service fee on the entry fees and from the players and from you as well, and तुम टूर्नामेंट्स आराम से मैनेज कर सकते हो. तो वहाँ पे जैसे डेवलपर्स का यूज हो सकता है. there are other ways to actually get developer gigs in the esports industry. apparel designers is one जिसमें मेरा भी खुद का एक इंटरेस्ट है अभी, क्योंकि आई एम ऑल्सो सर्चिंग फॉर समवन who can actually design our merch, and our subsidiary business is also dependent on this. तो इसलिए यानी कि इट्स ऑल, मुझे लगता है कि मेरे जैसे और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको पक्का पड़ता होगा ज़रूरत इसका. 100 Thieves एक है, 100 Thieves एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है जिसमें आप देखोगे कि उनके पास लगभग 10 से ज़्यादा अपैरल डिज़ाइनर की एक टीम है एक्चुअली डेडिकेट्स इट्स टाइम इन creating good streetwear products. Shoutcaster is one of those. Many of my friends are there in the Sky Esports tournaments and Village Esports tournaments who are like casting the tournaments actively. So if you're someone जिसका like language flow is good, like इसमें language barrier कुछ नहीं होता. It depends on the organizer itself कि if he wants to get the tournament casted in English, you guys can say it in English. It's all cool. अगर हिंदी में बोल रहा है तो हिंदी में करने का, एंड रीजनल लैंग्वेज में और कुछ तो कर सकते हैं. आई थिंक स्काई स्पोर्ट्स वाज देयर जो रीजनल लैंग्वेज भी यानी कि इंटीग्रेट कर रही थी. सो यू गाइस कैन हैव दैट अपॉर्चुनिटी. इफ यू नीड any sort of contact in Sky Sports and other, I can get you connected there. Just hit me a DM and then I'll get you connected via LinkedIn. Okay. As far as an analyst and coach is concerned, I think you shouldn't go this part unless you have a proper experience of like 3,000 to 4,000 hours in a game. And if you have this sort of gift of analyzing mistakes of others and just creating a pattern in your mind that this sort of enemy is doing this every time, so you just guide your team that don't go there, rather go other side and just flank and then kill them. So if you have this sort of like observant mindset, so I think you should go there, but you should have a good level of experience in this part. Fintech is one. I won't talk much about it because it's really above my head. I don't know. Like it's really tough to explain fintech to people.
Team manager and owner. So basically, in this, your main work will be under an esports team, and you'll be managing multiple teams under your command. So you'll be just maintaining the basic amenities that players need. And if there's any HR issues, basically कि someone is fighting against each other, like और एक आदमी टॉक्सिक हो जाता है दूसरे से, तो ये सब अगर होता है तो the team manager is responsible for all of that. Currently my brother in Kira is actually managing these things. Tournament admin is where actually you'll be communicating a lot with the teams and the professional players. So if you're a sort of guy that wants to connect with these players, if you and you don't have that level of expertise in the game, but yet you want to just like communicate with those people actively, so that like, in some time you can just socialize with them later on. So this is a good job for you, and इसमें ज़्यादा effort है नहीं other than you'll be forced to just come on times and like posting updates to for the next tournament to the teams, and communicating properly about the कि कोई registration है या फिर tournament money अगर भेजना है उनको. So there are certain documents that needs to be signed by the players with their like details and like person like documentation basically करना होता है इसमें, वो सब included होता है. Content creator and journalist, it's one of the interesting streams because इसमें बहुत कम लोग हैं अभी and चाहिए बहुत ज़्यादा लोग. कंटेंट क्रिएटर में आपका बेसिकली इसमें ग्रोथ आपका तभी हो सकता है जब आप इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाओ, एंटरटेनिंग बनाओ एंड कोलैबोरेट करो. बिकॉज आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत तगड़ा कंटेंट बना रहे हैं, दे आर सो गुड क्रैक गेम एंड स्टिल उनको इतने व्यूज नहीं मिल रहे, या उनकी ग्रोथ उतनी बढ़िया नहीं है यूट्यूब पे या ट्विच पे भी. सो आई थिंक इसके लिए आपको हमेशा कोलैबोरेट करना चाहिए. बिकॉज मैंने दोनों केसेस देखे हैं जहाँ पे आदमी अपने खुद के बलबूते पे भी किया है, उसमें सक्सेस का चांसेस बड़े कम है, बट करते हैं लोग, बहुत सारे हैं जो खुद के बलबूते पे किए हैं एंड आगे बढ़ गए. बट मैंने मोस्ट ऑफ द पीपल को देखा है वो कोलैबोरेशन से बढ़े हैं. इफ यू नो अबाउट Meow 16K, she started in Fortnite. So Fortnite में आई थी and she played with like one of her players in like one tap. So वहाँ से यानी कि she grew her audience, वहाँ से raid हुई and then थोड़ा थोड़ा community बढ़ाया and then she started collaborating with big YouTubers in the scene. I think Gamer Fleet was also the one जो उसने बहुत support किया था. और हाँ ऐसे ही यानी कि इवन मेरे ही org में भी एक एग्जांपल है. दिस गाय called Abhinav, he grew from like 200 subs to about like 5K now in matter of like 6 months. So उसका भी यानी कि collaboration के थ्रू हुआ. He knows content creators like Ria Gogoi, Fing, Captain India. So इन सबको हाँ इन सबको जानने के बाद ही यानी कि उसने उनके साथ कोलैबोरेटिव कंटेंट बनाया. बेसिकली कुछ नहीं किया, टैलेंट खेला, ही जस्ट क्रैक्ड अ फ्यू जोक्स एंड इट वाज ऑल फन एंड कोजी. यही कंटेंट बनता है एंड देन पीपल जस्ट वॉच इट. वो लोग भी तुम्हारा कंटेंट प्रमोट करते हैं, तुम भी अपने साइड से करते हो ऑन एवरी सोशल चैनल्स, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो. एंड इन जर्नलिज्म में तुम्हें बेसिकली कम्युनिटी से कनेक्टेड रहना पड़ेगा. कम्युनिटी की हर कम्युनिटी में बेसिकली तुम्हें रहना पड़ेगा, या फिर तुम एक काम कर सकते हो कि तुम एक नीश से रहो सेट. तो ये तुम्हें लिबर्टी इसमें मिलेगी. जैसे अगर तुम स्पोर्ट्स कीड़ा ज्वाइन कर लेते हो या फिर वन ई स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हो या AFK गेमिंग ज्वाइन करते हो, then you guys will have this liberty of just choosing one and growing there from there. से कि अगर तुम फोर्टनाइट कम्युनिटी से बहुत डीपली जुड़े हुए हो, करो फिर. और उसमें यानी कि रिलेटेड हर न्यूज को पकड़ो एंड न्यूज को उनके आर्टिकल्स बनाओ, पोस्ट करो. You can start as an intern in one of these companies and just take a like good job, like hyping job from there. हो सकता है. मार्केटिंग PR एग्जीक्यूटिव, आई थिंक यू गाइज नो वेल.
आई थिंक यू गाइस आर मैच्योर इनफ कि ये सब इतना बताना नहीं पड़ेगा इस चीज़ में. टैलेंट एजेंट इज बेसिकली समवन जो यानी कि टैलेंट ढूंढ करके यानी कि ई स्पोर्ट टीम्स को देगा और कंपनीज को बताएगा या नए नए स्पॉन्सर्स को बताएगा कि ये एक तगड़ा बंदा है, इसको आपको स्पॉन्सर करना चाहिए. दिस गाय कैन एक्चुअली bring you a good revenue because he has a good influence in the community. Right now, अगर मेरे पास एक लाइव एग्जांपल हो तो 8-bit is one of those talent agency who's working really well in this part actually. They created Soul, they made it as a brand, and now they're also managing multiple PUBG mobile players and other like content creators in under their command. So वो आराम से उनका हो रहा है. इवेंट मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव में आपका लैन का एक्सपीरियंस का आ जाता है. प्रोडक्शन में इतना स्ट्रीमिंग का भी इंक्लूडेड होता है, बट आप मोस्टली लैन की इवेंट्स अब मैनेज कर रहे होगे. आप उसमें फुटफॉल कितना है, आप कितने की लिमिट रख सकते हो, फिर लाइक ऑडियो इक्विपमेंट्स क्या चाहिए, सब प्रोडक्शन में आ जाता है, इंक्लूडेड हो जाता है. एंड स्ट्रीमिंग की क्वालिटी आपको कैसे इम्प्रूव करनी है, क्योंकि आप नॉर्मल स्ट्रीम कर सकते हो, बट आपने देखा होगा स्काई स्पोर्ट्स का अगर आप देखोगे एज अ वैलोरेंट का, या फिर द ई स्पोर्ट्स क्लब इज आल्सो वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल्स जिसमें आप देख सकते हो कि कैसे प्रोफेशनली एक प्रोडक्शन की जाती है किसी भी टूर्नामेंट स्ट्रीम की. तो एक ये सब है. पार्टनरशिप में आप बेसिकली आप नए नए एक्टिवेशंस क्रिएट कर रहे होगे फॉर ए ई स्पोर्ट्स कंपनी, और कोई भी यानी कि ई स्पोर्ट्स टीम या कंपनी किसी के लिए भी आप पार्टनरशिप इनोवेटिव क्रिएट कर रहे होगे जिसमें दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा होगा. लाइक आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे उनके, एंड यू विल बी प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स फॉर देयर सेल्स. से कि अभी इसमें सीक्रेट लैब एक अच्छा खासा एग्जांपल है जिसके साथ ना वन हिट थीव्स ने पार्टनरशिप किया है. एंड यानी कि वो जो भी कंटेंट क्रिएटर साइन करते हैं उनको हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए फ्री चेयर्स मिलती हैं, गेमिंग चेयर्स, विच इज़ रियली एक्सपेंसिव. एंड उसमें यानी कि उसके रिटर्न में उनको बस प्रमोशन मिल रहा है और कुछ नहीं. और यानी कि फोटोग्राफी स्टूडियोग्राफी इज आल्सो वन ऑफ दोस जिसमें जैसे आपने देखा होगा, मैंने इसमें भी एग्जांपल्स में भी दिखाया था कुछ जगह पे, ये सब फोटोग्राफी स्टूडियोग्राफी के एग्जांपल्स हैं. एंड हेडशॉट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप जब एक इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट में जाते हो, दोज पीपल नीड दोज गाइस के जो फोटोग्राफी कर सके. और इवन लैंड इवेंट्स में यानी कि जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं आपको हमेशा रिक्रूट करेंगे फॉर दिस कि वहाँ के इवेंट के फोटोग्राफ्स, बिकॉज उनको अगली बार यानी कि वैसे लैंड टूर्नामेंट अगर करवाने होते हैं तो स्पॉन्सर के पास जब भी जाते हैं दे नीड टू शो दिस कि उन्होंने कैसे ऑर्गेनाइज कराया था, कितना फुटफॉल था, वो सब चीज़ें दिखाने के लिए मिलता है. तो हाँ, तो ये चीज़ है. एंड प्रोफेशनल प्लेयर्स इज द लास्ट वन जिसमें बेसिकली आपको बस टन्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, मेहनत बहुत है, एंड इट इज़ अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बेस्ड करियर. सबके लिए नहीं है, जस्ट लाइक एंटरप्रेन्योरशिप किसी के लिए नहीं होती, ये भी वैसे ही है कि एक टाइम पे जा करके आपको मतलब देखना पड़ेगा कि अगर आप सही कर रहे हो, यू आर ग्रोइंग, इट्स ऑल गुड. बट अब 25 के एज अगर मान लो कि 25 एज के बाद आप अगर लग रहा है कि आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे, you should leave this thing and move on with your life, do something else. Or if you still love esports, try to find another thing. Like जैसे मैंने जितने भी ऊपर में options बताए, these could be one of those streams जिसमें आप जा सकते हो. तो ये है क्योंकि मैं बहुत सारी esports players में देखा हूँ जो CSGO में है, 30 की एज हो चुकी है, एंड ना उनका कम्युनिटी ग्रो हुआ है एक बार भी ये यूट्यूब पे, ना उन्होंने यानी कि कुछ अच्छा खासा कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स में कुछ किया. दे हैव वेस्टेड देयर लाइफ. लाइक अब 30 के हो गए हैं, दे हैव नो जॉब, लाइक खाने का पता नहीं, कुछ नहीं पता, एंड दे आर जस्ट वंडरिंग व्हाट टू डू नाउ. सो डोंट बी इन दैट सिचुएशन लाइक दोज गाइस, प्लीज वैसा मत करना. एंड
या सो कमिंग टू esports प्लेयर, सो इसमें आपको सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बोलूं, जब भी आप सोच रहे हो वैलोरेंट अगर आप चला रहे हो ठीक है, पबजी खेल रहे हो कोई बात नहीं, बट मार्केट जरूर देख करके घुसो, मेहनत करने जा रहे हो इसमें तो। हम लोग गेम के लव में कर तो देते हैं एंड आगे बढ़ तो जाते हैं, बट वही बात है, मार्केट इतना बड़ा नहीं होता कि आप उतना बूस्ट हो पाओ उस चीज में। अभी जैसे पबजी था वैसा मार्केट बूस्ट हो रहा था उसमें, उस पर मीडिया अटेंशन जिस चीज पर है उस चीज में आपको बेसिकली जाना चाहिए। अभी करंटली आपको 3 गेम्स दिखेंगे जिसमें यानी कि आपको मीडिया अटेंशन है। पहला पबजी मोबाइल, करीना फीफा है एंड वैलोरेंट। CS:GO का व्यूअरशिप डाई करता जा रहा है इंडिया में। डोटा 2 का बहुत ही कम है। आई लव डोटा 2 कंटेंट बट आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स तो इतना नहीं बताती है कि इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट है। रेनबो सिक्स सीज इज ऑल्सो वन ऑफ दोज की जो एक कैप पे पहुंच चुका है कि इसके ऊपर जा ही नहीं रहा है व्यूअरशिप। मेजर्स में ही 26,000 की कंकरेंट वॉचिंग थी। एंड अगर तुम पबजी मोबाइल का देखोगे 1 लाख से कम की नहीं होती है कंकरेंट व्यूअरशिप। तो वहां पे ही स्टैंडर्ड पता चल जाता है कि कौन से गेम में घुसना चाहिए था। हमारे प्लेयर्स तो घुस चुके हैं इस स्ट्रीम में, 6,000 7,000 घंटे लगा चुके हैं, इसलिए अब तो इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। दे आर अर्निंग वेल, सो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट सब लोग नहीं कर पाते वो चीज़, एंड इसलिए अगर आपको अगर इवन इफ अगर आप प्रोफेशनल प्लेयर नहीं बन पाते हो, एटलीस्ट स्ट्रीमर भी बन जाते हो, इट्स ऑल्सो गुड, क्योंकि स्ट्रीमर डोनेशन आपके टैक्सेबल नहीं है। आपको एक टैक्स नहीं देना। अगर 2 लाख आता है आपका स्काउट का, 2-3 लाख रुपए एक दिन का आता है डोनेशन से ही, एंड उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। इट्स कंप्लीटली हिज ओन मनी एंड ही कैन यूज इट वेरेवर ही वांट्स टू। सो मार्केट, उसने अच्छा मार्केट देख करके आगे बढ़ा। ही हैज बिल्ट हिज ओन ब्रांड। अब वो प्रोफेशनल गेमिंग छोड़ भी दिया है, तब भी ही इज अर्निंग वेरी वेल। ट्राई टू थिंक ऑफ ब्रांड बनाओ उसमें, एंड देन आगे तो सब कुछ स्मूथ होता चला जाता है। ब्रांड आप यानी कि अपने परफॉर्मेंस से बनाओगे या अपने कंटेंट से बनाओगे, एंड कंटेंट आपका हैंड इन हैंड जाना चाहिए। प्रोफेशनल प्लेयर का यही होता है। इस स्टेज के बाद अगर आप देखोगे इन FPS गेम्स आप लोग की रिएक्शन टाइम बहुत दिक्कत जाती है, एंड दैट्स व्हाई न्यू प्लेयर्स जो नए नए आते जाते हैं उन लोग का रिएक्शन टाइम फास्टर होता है एंड दे स्टार्ट डोमिनेटिंग द सीन। सो 30 के बाद क्या करोगे, उसकी आपको शुरुआत से ही कंटेंट दे जाना है कंसिस्टेंट विद थिंक ऑफ द बिजनेस। अगर डिसिप्लिन बना के रखोगे, एक एक हफ्ते में एक एक मिलते जाओगे, दिस नो वे कि यानी तुम लोगों को कोई रोक सकता है ग्रो करने। तो पे गेम तो मैंने बता दिया बेसिकली कि आपका गेम्स बेस्ड ऑन द मार्केट। सेकंड इज की करो कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करना चालू करो। कई लोग मैं बताऊं कि गेम तो खेलते प्रोफेशनली खेलते हैं। अब जैसे फोर्टनाइट का ही बताऊं, फोर्टनाइट में भी बहुत से जो खेलते हैं कैश कप्स एंड ऑल में कर फॉर्म, बट कम्युनिटी से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। कम्युनिटी से इंटरेक्ट नहीं करोगे तुम्हारा जानेगा भी नहीं, भले ही तुम कितना भी बढ़िया खेलो कोई नहीं जानेगा। एंड वो इन्फ्लुएंस नहीं आएगा तब तक तुम स्पॉन्सर्स को अप्रोच नहीं कर सकते। तो फैन सपोर्ट तुम भूल ही जाओ, क्योंकि इवन अगर कल को इस टीम आ रही है उनको भी चाहिए बेसिकली तुमसे। या तो तुम क्लाउड दो या तो तुम परफॉर्मेंस के थ्रू यानी कि रेवेन्यू उनको जनरेट करके दो। दो में से एक चीज हो सकती है, एंड उसकी बेसिस पे तुम्हें कॉम्पेंसेट किया जाएगा वाया सैलरीज एंड डिवाइस एंड पेरिफेरल एक्सपेंसेस के थ्रू। थर्ड गियर, सो अपना पूरा यानी कि जितने भी प्रोफेशनल गियर रिक्वायर्ड हैं, हो सकता है कि तुम लोग का हेडफोन इंफीरियर हो और तुम लोग को जस्ट थोड़ा चलने के थोड़ा हाई लेवल पे के लिए डिवाइसेस चाहिए होंगे। इसके साथ साथ बहुत करना है, लैडर चढ़ते जाओ एंड एक टीम ढूंढो जो यानी कि तुम्हारे सेम माइंडसेट के साथ है, हु इज नॉट देयर टू वेस्ट टाइम बट रादर तुम्हारे साथ ही यानी कि मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती है, उसी स्टार्ट में पहुंची है। इसमें मैं बहुत यानी कि गलती किया हूँ कि मैं अपने कुछ ऐसे किया कि इट वाज लाइक कि मैं अपने आप को ही रोक लिया अपने प्रोफेशनल स्पोर्ट्स करियर में एज अ प्लेयर कि मैं आगे जा सकता था इफ आई फाइंड समवन लाइक मी, बट वो हो नहीं पाया एंड मैं अपने फ्रेंड को करके रखा रहा। Although so and motivated in the game, so that's one reason why I actually left 14.
तो ये बात है, तो आई वांट टू मेक करियर, दिस इज सीरियस ना पड़ेगा। तो वही बंदे टाइम वेस्ट है। स्काउट इज आल्सो स्काउट इज वन ऑफ दोस मोस्ट एरोगेंट पीपल, जो यानी कि बोलता था यही चीज कि अगर तुम्हें नहीं हो, तुमसे नहीं हो रहा है, तो न्यासी टाइम और टीम का टाइम जस्ट आउट। वो एटीट्यूड रखने का है, हर्ट का है, बट इट्स फॉर गुड। सो या फिर इसके साथ साथ अपना यानी कि हेल्थ मेंटेन करो, बिकॉज मेंटल माइंडसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। जो लोग काउंटर स्ट्राइक या फिर कोई भी एफपीएस खेलते हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव में खेल रहे गेम, दे नो व्हाट कि माइंड कितना इंपॉर्टेंट रोल मैटर करता है, इसका बहुत कितना इंपॉर्टेंस कितना है ज्यादा है को सीरियसली लेके चलने का। एंड अच्छा रखोगे, माइंडसेट बढ़िया रहेगा, माइंडसेट बढ़िया रहेगा तो तुम उतना कॉन्फिडेंट करोगे, और तुम्हारी यूजुअली कॉन्फिडेंट फील करोगे तो शॉट्स भी लगते हैं। फील भी किया होगा, फील किया ये चीज? हाँ किया है। बॉस हाँ हाँ, मतलब कॉन्फिडेंट फील होता है, भाई कुछ नहीं होता, ऐसा होता है। सो इन द एंड लाइक डिवाइस इतना मैटर नहीं करता है। लोग बोलते हैं कि डिवाइस मतलब कि मेरे पास डिवाइस नहीं है इसलिए मैं अच्छा नहीं कर पा रहा। प्लीज म्यूट योर माइक गाइस, जिसका भी है। अच्छा, आई थिंक डिवाइस कुछ इज गेम्स में डिवाइस मैटर करता है, कुछ गेम्स में तो करता है, जैसे मतलब काउंटर मैं स्ट्राइक। वही मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो, अनलेस यू आर अ टॉप टियर है ना, जिसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है, तब तक यानी कि तुम्हें जरूरत इतना ज्यादा है नहीं। यू गाइस कैन एक्चुअली बोरो समवन एल्सेस डिवाइस। इवन देखो, तुम एग्जांपल देखो कि अंकित पंत जो है, अंकित पंत यानी कि उसके पास खुद का डिवाइस नहीं था ब्रो। वो जा करके कैफे में जा करके किसी और के पीसी पे देख करके खेलता था, वहां पे जाके बोरो कर करके खेलता था। एंड हाँ, नाउ इज ही आवाज इज एट स्टेज स्टार्टर हो जहां रही है, पर मुझे लग रही है। हेलो आवाज स्टार्टर हेलो हो रही है, लग रही है। अच्छा देखो देखो ब्रो, फॉर अस इट्स पीस। अच्छा ठीक है, सही है ना फिर? Yeah, it's right. ओके, सो मैं और एग्जांपल देता हूँ। मेरा खुद का एक प्लेयर है, रैटलर। सो रैटलर का इनिशियली जब हम उसको रिक्रूट करने वाले थे इनटू द टीम, सो उसका 40 एफपीएस पीसी था। 40 एफपीएस पीसी पे वो प्रो लीग टीम्स को अच्छे रिपीट करता था। इवन इन टूर्नामेंट्स वन ऑफ दोस गाइस की हमेशा टॉप ऑफ द कर्व पे रहता था। सो वो वैसे एग्जांपल्स तुम्हें कभी कभार फील कराते हैं कि कभी कभार डिवाइस मैटर नहीं करता, योर ओवरऑल स्किल एक्चुअली मैटर्स। एंड देन उसके ऊपर जब यानी कि तुम एक लेवल पे जब पहुंच जाओ, तुम्हें लगता है कि हाँ अब तुम एक कैप इसके ऊपर तुम्हें करना है, यू विल नीड अ बेटर हार्डवेयर। तुम जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो। इवन मैं मोटिवेट हूं, बिकॉज 40 एफपीएस पे जब बजा रहा है तो उसका हर्ट्स मॉनिटर दे दूं मैं कल को, या मैं बेटर सब कुछ उसका इम्प्रूव करके दे दूं, सोचो क्या करेगा। एंड आई गेव इट टू हिम, ही इज परफॉर्मिंग रियली वेल, डूइंग गुड। सो इस तरह से मैं अगर बोलूं तो डिवाइस जो बच्चे बोलते हैं सर मेरा डिवाइस दे दो फिर मैं दिखाता हूँ कि पबजी में कैसा प्लेयर हूँ, भाई तो कुछ नहीं दिखा पाओगे। तुमने अभी तक दिखाया अनऑफिशियल स्क्रीन खेल के, अगर तुम बोलोगे टू भी अगर खेल के दिखते है ना, एंड तुम शो करते कि तुम टॉप ऑफ द लाइन, तब जाकर थोड़ा सोच सकता था कि हाँ चल शॉट ले, क्या पता कर जाए। मोटिवेटेड डिवाइस अगर चाहिए ट्राई करते हैं। बट तुम आते हो सर मैं हूँ यहाँ से हूँ, मेरे मम्मी पापा डिवाइस परफॉर्म नहीं कर पा रहा, नहीं तुम उड़ो बना कुछ नहीं करो। सो ऑर्गेनाइजेशन फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, बेसिकली इसमें लोग हमेशा अपने बारे में सोच के जाते हैं। इवन मैं भी यही गलती करता था कि हमें डिवाइस चाहिए, हमारे पास परफॉर्मेंस है ना, एंड जो स्पॉन्सर है उसको सिर्फ क्या चाहिए, उसको क्लाउड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उसको बस एक्सपोजर चाहिए। छोटी मोटी तुम्हारी 10,000 की एक्सपोजर चाहिए, 10,000 पीपल की कम्युनिटी की, उसमें चल जाएगा। ही विल स्टार्ट गिविंग यू लाइक 50,000 रुपीज अ मंथ। डजंट हैपन लाइक दैट, कुछ नहीं होता। सब झूठ बोलते हैं अगर ऐसा बोलते कि होता है तो। एक्चुअली होता क्या है कि तुम्हें अपना समथिंग ऐसा कुछ बना के जाना पड़ेगा प्रपोजल, कि तुम कितना टूर्नामेंट से रेवेन्यू जनरेट करते हो आफ्टर टैक्सेस से। कि मैंने यहाँ पे 80,000 पर मंथ का मैंने लिया है एग्जाम्पल, सो दैट मीन्स 9.6 लाख का रेवेन्यू। तुम डिवाइस एंड पेरिफेरल का कॉस्ट मान लो 20,000 रुपीज पर मंथ ऑन ईएमआई देते हो, 2.5 लाख के आसपास वो हो गया। ट्रैवल एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस अभी तुम्हारे जीरो लग रहे हैं,
क्योंकि कोविड चल रहा है, कुछ है नहीं, मतलब टूर्नामेंट्स लैंड, कहाँ जा रहे हो तुम? सैलरीज तुम 5,000 रुपए भी लेते हो, 3.6 लाख रुपीज फॉर 6 प्लेयर्स तो लगता है, एक सब्स्टिट्यूट भी होगा तुम्हारे, इसलिए तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि उसको प्रॉफिट कितना होने वाला है और कितना प्रॉफिट परसेंटेज उसका इंक्रीज होगा। एंड दिस टाइप ऑफ जो स्पॉन्सर इस तरह ये जो हम किसी प्राइवेट स्पॉन्सर जो किसी बिजनेस से जस्ट इन्वेस्टर यू गाइस कि तुम्हें सपोर्ट शॉर्ट टर्म इमीडिएटली चाहिए, मिल जाए यानी कि निकाल के जाके खरीदो, रादर यू गेट फास्ट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट इमीडिएटली। तो ये तो हुआ अगर तुम प्राइवेट स्पॉन्सर के पास जा रहे हो। व्हाट इफ कि कंपनी स्पॉन्सर के पास जा रहे हो तुम कल को, कंपनी स्पॉन्सर्स को चाहिए 1 मिनिमम का फुटफॉल, एंड तो तुम्हें अगर अब तक ये नहीं हुआ तुम्हारे पास 1 लाख की फॉलोइंग नहीं है, आइदर ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब, एनी प्लेटफॉर्म सबको इंक्लूड कर लो, तब भी यानी कि 1 लाख नहीं बन रहा, थिंक यू शुडंट गो देयर, बिकॉज जो मिलती है लोगों को 3-4 हजार फॉलोअर्स पर इज हाइब्रिड स्पॉन्सरशिप। सो तुम्हें रेयरली डिवाइस मिल जाएगा इन अ ईयर, एंड मे बी वो भी होगा कि टेम्पररी बेसिस पे मिलेगा। सो गाइस वोंट बी enjoying the full support from the company. Every company just likes to excite the players. ये होता है, at least from my own eyes, organization. So जैसे अपने सीन में भी देखा है, रेनबो से भी देखा है, CS:GO कम्युनिटी में भी देखा है, हर जगह यही होता है, हाइब्रिड स्पॉन्सरशिप इज नॉट द राइट टू गो। इसका तुम ये कर सकते हो कि एफिलिएट के साथ है Amazon अलाउ करना है, Amazon थ्रू डेटा क्लिक करते हो कि तुमने इतनी की सेल्स दिखाई, एंड देन जस्टिफाई कि इवन इफ यू हैव अ स्मॉलर कम्युनिटी, this community is actually using your affiliate link and तुम एक ही सेल्स कर रहे हो, वो अच्छा ऑप्शन हो सकता है to justify your sales, and then तुम उसकी बेसिस पे तुम डिपेंड सकते हो कि कुछ मान लो 50,000 महीने का चाहिए तुम्हें सपोर्ट, देगा, दिखाओ पहले डेटा ना। ये चीज लोग दिखाते नहीं है, एंड देन डायरेक्ट मूव लेके चले जाते हैं कि बस ये परफॉर्मेंस है, ये है, ये है, बस खत्म, इतने में आजकल। तो यही जस्ट है इस चीज का कि हाउ टू अप्रोच, ठीक है। एंड यही एंड में यही है कि डोंट आस्क फॉर बेनिफिट्स अंटिल यू प्रोवाइड वैल्यू। बेसिकली चैरिटी तो है नहीं है ना, बिजनेस ही है, तो जब तक तुम उनको प्रॉफिट नहीं दिलाओगे तब तक वो तुम्हें कुछ नहीं देंगे, उनके लिए जब तक कुछ नहीं है तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, इसी पे पूरा चीज चलता है। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल बीइंग थिंकिंग दैट दे आर एंटाइटल्ड टू दिस सॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स। अब तुम लोग को लग रहा है कि मैं यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ओनर हूँ इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं खुद भी प्लेयर रह चुका हूँ, एंड मैंने जितने रिजेक्शन झेले हैं शायद तुम लोगों ने कभी नहीं झेले होंगे, एंड यही रीजन है कि क्यों मैं इतने रिजेक्शन झेला हूँ, एंड लर्निंग के थ्रू मैंने ये बात किया है। यही है गाइस, थिंक तुम सबको पसंद आया होगा। थैंक यू। सो कोई क्वेश्चंस है गाइस? अगर ई स्पोर्ट्स और चालू खोलनी हो तो कैसे खोलें? ई स्पोर्ट्स और खोलनी है तो तुम्हें कैपिटल बहुत चाहिए, अनलेस तुम्हारे पास लगभग मिनिमम 10 लाख का कैपिटल नहीं है स्टार्टिंग में, आई थिंक यू शुडंट गो दिस रोड। सच में नहीं, सच में नहीं। अगर तुम कर सकते हो, अगर तुम एक टीम ऐसी ले आओ, परफॉर्मिंग टीम जो बिना सैलरी के साथ तुम्हारे साथ काम करने के लिए रेडी है, ये हो सकता है। मैंने ये किया है, मेरी टीम जो है दे रहे थे जब भी लैन आता था, तो इस तरह से हमने यानी कि अपनी रिलेशनशिप बढ़ाई, एंड देन उसके बाद जब हम केपेबल हुए तब हमने उनको सैलरीज भी पे करना चालू किया। तो आप इस लाइन पे भी जा सकते हो, बट अगर आपको सीरियसली ग्रो करना है बहुत तेज, यानी इन शॉर्ट वाइल, एक 6 मंथ्स में आपको एक प्रोमिनेंट ई स्पोर्ट्स टीम बन के आना है, यू नो अबाउट टीम आई, सो उसमें भी क्या है, मतलब दे स्टार्टेड थ्रोइंग मनी राइट एट द स्टार्ट, दे स्टार्टेड रिक्रूटिंग द विनिंग टीम्स इन द बिगिनिंग। उनको पता चला टीम वर्टिगो जीत रही है इतने सारे टूर्नामेंट्स, ले लो अभी, कितना भी लगे ले लो, एंड दे आर रीपिंग द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। इफ यू हैव दैट गट्स यू कैन गो अहेड, बट वही बात है, ऐसी टीम वेलोसिटी इज अलग ही है, मतलब वैसा टाइप का विन रेट हर एक टीम में नहीं मिलता है, तो तुम्हें मार्केट भी देखना पड़ेगा, बहुत सारे फैक्टर्स है। आई कैन टॉक लॉन्ग वे, लेकिन इस पे बहुत लंबा लंबा बात हो सकता है, बट एक कभी डीएम में आना फिर बताऊंगा, ठीक है? तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से आई कैन टेल यू कि तुम्हें क्या करना चाहिए, और तुम में से किसी को भी अगर हेल्प चाहिए मुझे डीएम करना, ठीक है गाइस?
I've mentored more than 40 people in the industry, right? And they're doing well. So can help you guide you guys in the e-sport part of things. Otherwise, players wise में अगर चाहिए तो मैं तुम लोगों को connect करवा सकता हूँ related players के साथ. और कोई question? भैया जैसा आपने बताया था वो डेवलपर वाला जैसे, तो वो ऑप्शन आप एक बार आप थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में बता सकेंगे मतलब कैसे क्या तो पॉसिबल होगी? मैं डेवलपर अभी वाले गेम में डिजाइनर हाँ तो हाँ गेम प्लीज गेम डिजाइनिंग इज वन ऑफ दोस थिंग्स. बट मैं यानी कि इतना ज्यादा इस पार्ट में ज्यादा जानता नहीं ना, तो दैट्स व्हाई आई डिडंट हैड नॉलेज, बट आई हैड टू शेड सम लाइट ऑन दिस. दैट्स व्हाई आई मेंशन दिस. डिजाइनिंग में अगर मैं डेवलपर पार्ट ऑफ थिंग्स में बोलूँ तो मेरे को एक ही एग्जांपल दिमाग में है, ईफ्यूज का, बिकॉज उनसे मुझे उनके फाउंडर के साथ मेरी टॉक्स हुई थी. His founder is from Norway, and eFuse what it is trying to do is कि ब्लॉकचेन के थ्रू उनको ई स्पोर्ट्स इंटीग्रेट करना था एंड कंटेंट को इंटीग्रेट करने का है उनका मोटिव. सो वो उसके लिए दे वर हायरिंग डेवलपर्स. आई थॉट कि हाँ यहाँ पे भी डेवलपर्स का यूज है, गाइस कैन गो देयर. ऑल्सो लाइक वेब डेवलपमेंट भी इज वन ऑफ द थिंग्स. कई सारी ई स्पोर्ट ये अब क्या कर रही है कि उनको स्पॉन्सर्स को अप्रोच करने के लिए उनको वेबसाइट बनवानी पड़ रही है. तो तुम लोग अगर फ्रीलांस में भी अगर अच्छी खासी सर्विस दे रहे हो इस चीज के लिए कि वेबसाइट बनवा दो उनको एट लाइक चीपर कॉस्ट, लाइक मे भी कुछ भी हो सकता है, चीपर ही नहीं सही बट कुछ भी है, और अगर कर रहे हो दैट्स गुड, कर सकते आई थिंक गेम डेवलपर्स भी हो सकते हैं. हो. हाँ हाँ आई नहीं एम नॉट फ्रॉम द एग्जैक्टली टेक्निकल एक्चुअली नीश क्या मैं ब्रो. तो हाँ नहीं एक्चुअली क्या कि मैं गेम डेवलपर ही हूँ एक्चुअली, मतलब लाइक मैं करेंटली अच्छा. परसुइंग दिस एज माय करियर इन कॉलेज. सो इसके मतलब हम्म. इंटरेस्ट जगा हुआ है अभी कि मतलब कहाँ कहाँ से क्या क्या हो सकता है. अच्छा, आई कैन गेट यू कनेक्टेड विद अ गाय. हैव यू हर्ड ऑफ दिस असैसिनो मानिक? सॉरी आई हैवंट. दिस गाय इज एक्चुअली बिल्डिंग अ गेम राइट नाउ. उसको यानी कि लगभग 10 लाख की फंडिंग मिली है फ्रॉम अ प्राइवेट स्पॉन्सर, एंड वो एक गेम डेवलप कर रहा है. इफ यू नीड टू, इफ यू वांट मी टू कनेक्ट विद हिम ना, एक पूरा उसके तुम्हारे लिए, तो फिर मैं कर दूंगा. प्लीज अगर पॉसिबल हो पाए तो very good. He's looking for some supporters in this
तुम्हें एक्सपीरियंस भी मिलेगा साथ बाय साइड, एंड लाइक तुम्हें पता भी चलेगा क्या क्या चलता है अंदर, क्या क्या जाता है, बिकॉज वो अभी 30 लोग की टीम मैनेज कर रहा है करेंटली। बट एक्चुअली अभी इस वक्त मैं उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी जस्ट मतलब लाइक अभी दिसंबर में ही बट मैं वही बोल रहा था, अगर तुम्हें एक्सपीरियंस चाहिए मैं वहां कनेक्ट करवा सकता हूँ। प्लीज अगर पॉसिबल हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। आई विल वेरी या मुझे थैंकफुल। भी एक बार डीएम कर देना ब्रो। हाँ हाँ मैं बिल्कुल, मैं अभी अभी जस्ट डीएम में डाल रहा हूँ। ठीक है, कूल। और कोई क्वेश्चंस गाइस? मुझे ना एज के बारे में पूछना है कि हम किस एज तक मतलब प्रोफेशनली प्ले कर सकते हैं। मैं अभी 30 to 17 का 32। हूँ। हाँ, सो 30 to 32 की एज जो होती है, इसके बाद यूजुअली रिटायर करके जो प्लेयर्स होते हैं वो कोचिंग एनालिस्ट में चले जाते हैं या कोई और Okay. कॉर्पोरेट जॉब पकड़ते हैं इन ई स्पोर्ट्स मार्केट, क्योंकि उनका ऑलरेडी Like, ब्रांड होता है, उनके नेटवर्क होते हैं, यहाँ जॉब पकड़ना ज्यादा आसान होता है उनके लिए। okay, मैंने फोर्टनाइट का बेस्ट प्लेयर है ना बुगा, ही इज जस्ट 17, तो उसे देख के लगता है कि मतलब मेरी एज बहुत मतलब आई एम लेट फॉर दिस। You're not late man, you're not late। बहुत सारे लोग हैं जो 18 19 की एज पे भी जाते हैं बट स्टिल फोर्ड है। I know one of my guy, if you know Strix ना, from for like Valorant, he नो। he was one of my friends, like अभी भी है, मतलब ऐसा नहीं है, but he started with Fortnite। He was in One Tap team, so One Tap was one of the like leading clans from India, जहाँ पे सारे के सारे प्रो प्लेयर्स यानी कि साथ में आते थे। एंड हेलो guys, can you hear me? या आई थिंक कनेक्शन प्रॉब्लम। हाँ, मेरा वो डिस्कनेक्ट होता है बीच बीच में, वो थोड़ा दिक्कत है। सो तो ऐसा नहीं है कि तुम लेट हो, बात ये है कि तुम्हें थोड़ा बस लेट पता चला है, बट ऐसा नहीं है। तुम 23 की एज तक में भी अगर तुम प्रो बन जाते हो, यू हैव मेड योर करियर इन दिस। ओके। हाँ, तुम्हें उस लेवल पे पहुंचना है कि ई स्पोर्ट ऑक्स यानी कि तुम्हें $2,000 से $3,000 के आसपास देने लग जाए, वैसा हो तो बहुत बढ़िया सीन हो जाएगा। CS GO में एक है, निशांत यूज्ड टू टेल मी कि देयर वाज वन गाय फ्रॉम असम। सो वो मजे मजे में यानी कि एक टूर्नामेंट खेलने आया कोलकाता में, जस्ट बिकॉज हिज फ्रेंड जस्ट सेट कि ये खेलते हैं। वो 720p मॉनिटर पे खेलता था वहाँ लोकल लैंड पे पहले, एंड व्हेन ही एक्चुअली प्लेड ऑन अ टूर्नामेंट, पीपल वर लाइक इम्प्रेस्ड बाय हिज स्किल कि यानी कि एक लोकल और जो कोलकाता की थी उन्होंने रिक्रूट किया 5,000 रुपीज अ मंथ पे। ही स्टेड देयर विथ हिज फ्रेंड वहाँ पर 1-2 महीने के लिए, एंड देन एंटिटी गेमिंग उसको उठा ले गई, सो 25,000 रुपीज के मंथली सैलरी पे। एंड देन ही ट्रांजिशन फ्रॉम देयर कि इतना बढ़िया खेला कि नाउ ही इज इन सम साउथ ईस्ट एशियन टीम अर्निंग अबाउट लाइक $2,000 to $3,000 अ मंथ। से ये प्रोग्रेस उसका रहा है, like, कितने छोटे विलेज से आ करके इस लेवल पर होता है। एंड वो 19-20 साल का था उस समय। या ओके। हम्म, अच्छा गाइस, और कुछ? सर ब्रॉल स्टार्स में कुछ फ्यूचर है? ब्रॉल स्टार्स मार्केट तो अच्छा है ब्रो, और टूर्नामेंट्स तो हो रहे थे ना उसके अभी। आई एम नॉट फॉलोइंग द सीन अभी यार, इतना ज्यादा नहीं करा है मैंने फॉलो, बट मैं देख तो रहा था स्काई स्पोर्ट्स बहुत टूर्नामेंट्स करा रही थी, एंड TC वाज आल्सो प्लानिंग टू होस्ट द टूर्नामेंट। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। ब्रॉल स्टार का तुम ही बताओ ना, क्या सीन चल रहा है अभी? हेलो, या ब्रॉल स्टार का सीन बताओ ना, क्या हो रहा है वहां पर अभी? कितने टूर्नामेंट्स है उस पर मैं बता सकता हूँ कि मार्केट कैसा चल रहा है। एक
स्काई स्पोर्ट्स का चल रहा है और एक ESL का चल रहा है। तो प्राइस मनी कितना चल रहा है अभी उसमें? 1 लाख है। 1 लाख। सो गोइंग गुड यार। अभी तो शुरुआत ही हुई है ढंग से, नहीं टाइम लगेगा बट हो जाएगा मैं भी ग्रो। बट इट्स नॉट लाइक अभी CS की तरह या फोर्टनाइट की तरह जो एकदम ही मरी हुई है पूरी कम्युनिटी। ओनली जो बाहर की कम्युनिटीज है वही टूर्नामेंट्स करवा रही है। जैसे अभी फोर्टनाइट में वास्प ई स्पोर्ट्स बहुत टूर्नामेंट्स करवा रही थी, स्क्रिम्स करवाती वही है। आई डोंट नो, लाइक बहुत सारे प्राइवेट टूर्नामेंट होस्ट भी हैं बट ऑफिशियली कोई नहीं कर रहा है। पीपल ट्राइड, गेमिंग मॉन्ग भी की, गेमिंग मॉन्ग छोड़ दी, वही लास्ट थी। आई थिंक ऐसे हर सीन में होते जा रहा है। CS में भी अभी कम होते जा रहा है, भले ही अभी टूर्नामेंट चल रहा है TEC का। बट आई वाज इन टॉक्स विद लाइक इसके ओनर के साथ, ईशान आर्या। सो ही वाज सेइंग कि यानी कि व्यूअरशिप उस तरह की नहीं आ रही है कमेंडेबल जो उनको एक्सपेक्टेशंस थी। इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन व्यूअरशिप यार। जहां व्यूअरशिप आएगी वहां जाएंगे सब लोग जाएंगे उधर ही। TEC के ओनर कौन है? ईशान आर्या है एंड वामसी कृष्णा है। वामसी कृष्णा ओह। का बैकग्राउंड इज फ्रॉम AMD, सो दैट्स व्हाई वो लोग बहुत हाँ। जल्दी ग्रो करे हैं। So he was senior marketing guy from there. PUBG मोबाइल के बाद नेक्स्ट कौन सी गेम होगी जो बूम करेगी? बूम अभी लगता कर ही है। रही है ब्रो। फ्री फायर देखो ना, फ्री फायर का तुम व्यूअरशिप में देखो कितना मैट्रिक्स जा रही है। कंटेंट क्रिएटर्स आर लाइक, उनके जितने भी मैंने देखे हैं वो सब हायर हो चुके हैं बिलियन गेमिंग में। एंड मैं देख रहा हूँ 8 से 9 मिलियन की फॉलोइंग है। PS4 में कौन सा गेम्स होगा? कंसोल गेमिंग में यार मार्केट इतना अच्छा है नहीं। फीफा जैसे है, फीफा इज वन ऑफ दोस जो नहीं कंसोल गेमिंग में बहुत पर पॉपुलर है। इंडिया में व्यूवरशिप नहीं होता ना फीफा का। हाँ और ये भी है, टेकन का नहीं है, ये सब गेम्स का है ही नहीं ब्रो। जो प्रो प्लेयर्स हैं दे आर उनके वो खुद बोल रहे होते हैं कि ना व्यूअरशिप है, व्यूअरशिप नहीं है इसलिए स्पॉन्सर्स हम स्पॉन्सर नहीं करना चाहते हैं। कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो वो सपोर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि व्यूअरशिप ही नहीं है, कोई चाहते ही नहीं देखना। बहुत छोटी नीश कम्युनिटी। स्मैश ब्रोस का देख लो, स्मैश ब्रोस का भी यही सीन है। इसलिए मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ ना कि जो मार्केट में पॉपिंग गेम है उसमें मेहनत करोगे तुम्हें रिटर्न ज्यादा बेटर मिलेगा। डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। हाँ बार बार डिस्कनेक्ट। हाँ, so, उसी जगह में मैं इसीलिए तो पूछा कि नेक्स्ट कौन सी गेम होगी। नेक्स्ट गेम यही है ब्रो। अभी वैलोरेंट है, ठीक है, वैलोरेंट, फ्री फायर, ठीक है, ये 2 गेम में अभी सबसे ज्यादा टाइम लगा। ये यही तो टाइम अभी गेम निकलेंगे आगे। और रेनबो सिक्स सिege या वैलोरेंट, दोनों में से। रेनबो सिक्स बहुत सिege नहीं। स्टटर है, बहुत स्टटर है। अच्छा हाँ सुनाई दिया। मेरा तो पिंग सही है ब्रो। रेनबो सिक्स नहीं होगा। रेनबो सिक्स वोंट बी अ गुड ऑप्शन। वैलोरेंट Okay. हमेशा। ठीक है, ओके। रेनबो सिक्स अभी PUBG is the biggest game, most probably. या PUBG M इज द बिगेस्ट गेम। अभी वही बात है ना, अगर ये वापस आता है PUBG M तो पक्का इट विल बी बैक अगेन। Yeah, within बट 2 to 3 जब तक months. नहीं है तब तक फ्री फायर इज एंजॉयिंग इट पूरी व्यूअरशिप को। एंड वैलोरेंट कर रहा है। सारे कंटेंट क्रिएटर्स जहां वहीं पर वही जा रही है व्यूअरशिप। तो मतलब आपके हिसाब से मतलब अभी वैलोरेंट और फ्री फायर ग्राइंड करना इज काइंड ऑफ गुड अगर आपको हाँ इट्स फ्रूटफुल, बट वही बात है, मार्केट सैचुरेटेड है। ट्राई टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ। Or else try playing PUBG Mobile Korean version so that you can get into PUBG when it हाँ comes back. कर सकते हो, बट वही बात है, मैं ऐसे गैम्बल्स खेलूंगा नहीं जिसमें यानी तुम्हें डाउट है, क्योंकि गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है ना ये डिसीजन की कि PUBG मोबाइल। अच्छा हो रहा है। सॉरी 26 Most को वो है probably ना it will अपना be रिलीज है, within 2 to 3 26 months. को फौजी को रिलीज है। Yeah. हाँ मतलब ये तो RTI में पता चला है कि PUBG मोबाइल को के जो लिविक मैप है उसको यानी कि बैन किया गया है। एंड जो PUBG मोबाइल का ग्लोबल वर्जन था उसको बैन किया गया है। सो कोरियन वर्जन इज स्टिल नॉट बैंड, अदर वर्जन्स आर नॉट बैंड। PUBG लाइट को भी किया था बैन। सो या
तो You आई can थिंक still देयर इज अ play Korean. लिटिल बिट 50% चांस की यानी कि इंडिया में आए, कर सकते हो, बट वही बात है, मैं तो ऐसा गैम्बल नहीं लूंगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं नहीं करता, हाँ, क्योंकि अभी कि पबजी कुछ का पता कोई ही नहीं भरोसा है। क्या कर रही थी वो में? तो वो अभी की भी आके मम्मी को मम्मी कर रही थी, जब देख लेंगे कार्तिक तब। कैन यू जस्ट म्यूट योर माइक? या सर तुम बोल रहे थे? अभी मैं जैसे बोल हेलो। रहा था कि जैसे पबजी कोई सीन अभी फिक्स है नहीं, क्योंकि अभी फौजी का डेट अभी 26 को है ही, 26 जनवरी को। हाँ एंड गवर्नमेंट भी जो है अभी मतलब देख रही है कि कॉन्करेंट प्लेयर्स कितने हैं पबजी के, बट उसके बाद भी उसने अभी तक 2 बार रिजेक्ट कर चुका है पबजी को अनबैन करने के लिए। इसलिए तो मैं डरा हुआ हूँ कि तो मेरे हिसाब मैं से भी किसी को भी रेकमेंड नहीं कर रहा पबजी जाने के लिए, बट लोग कर रहे हैं फिर भी, बोल रहे हैं कि हम ग्राइंड करेंगे। इट्स गुड कि तुम लोग फिर वही जब आएगा वापस आएगा तब तुम अहेड ऑफ द कर्व हो गए, बट किस कॉस्ट पे है? यानी कि तुम्हें पता भी नहीं है कि एक्चुअली गवर्नमेंट अनबैन करेगी कि नहीं, ये कोई नहीं देख रहा। एंड सबके पास लिमिटेड टाइम है ब्रो, तुम लोग बहुत लिमिटेड टाइम पर हो। तुम एक तो तुम लोग के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे, पहली बात तो यही खत्म हो जाती है। Yeah. वो बोलेंगे ये सब छोड़ो, पढ़ाई वढ़ाई करो, जॉब पकड़ो एंड जिंदगी जियो। तो बस यही इस केस मेरे पास एक बहुत प्लस पॉइंट है। हाँ This is the main problem. नहीं, मेरे पास प्लस पॉइंट इसलिए कि मैं गेम डेवलपर हूँ। मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ कि भैया मैं स्टडी कर रहा हूँ, और एक्चुअल में होता नहीं। ये भी है वैसे। मेरे मेरे पेरेंट्स भी तो नहीं अलाउ करते हैं। मेरे डैड यानी कि मेरे डैड आर्मी से हैं, सो उनको यानी कि चाहिए कि बेटा पढ़ाई वढ़ाई करे और कुछ नहीं, जो गवर्नमेंट जॉब पकड़े, जिंदगी जी के खत्म करे। सो जब भी मैं बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स टीम हैंडल कर रहा हूँ, ये काम चल रहा है, वो हो रहा है, मीटिंग है, ये है, ही लाइक क्या कर रहा है ये सब। दे डोंट अंडरस्टैंड दिस कि ये भी अब एक बहुत लेजिटिमेट बिजनेस बन गया है, आगे बढ़ रहा है, इट्स गोइंग टू ग्रो। वी आर आल्सो लाइक क्लोज टू फंडिंग, सो अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया उनको कि थोड़ा सपोर्टिव होने लग गया। उनको जब तक समझ में नहीं आता कि मार्केट पोटेंशियल क्या है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इवन माय प्लेयर्स डिड हैड दिस प्रॉब्लम कि उनके उनका पेरेंट्स भी बोलते सही है थे। ना। हाँ, बात वही है कि जब तक तुम्हें सैलरी नहीं मिलती ना, मैंने ये देखा है, जब तक तुम्हें सैलरी मिलनी चालू नहीं होती किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तब तक तुम्हारे पेरेंट्स सोचेंगे कि ये कोई जॉब नहीं है, ये बस गैम्बल है। आज तुम टूर्नामेंट जीत रहे हो, आज तुम कल को आजकल वेजर्स जीत रहे हो या कुछ भी जीत रहे हो, कल को क्या, कल क्या करोगे? कल को गेम डाई कर गया, तुम क्या करने वाले हो? यही इसी बात पे यानी कि पेरेंट्स हमेशा क्वेश्चन पोज करके चुप करा देते हैं। सो हाँ, अगर तुम अच्छा लैक ऑफ खासा कमा रहे नॉलेज भी हो, तो रीजन है। हाँ वही लैक ऑफ नॉलेज इज द रीजन। उनको पता ही नहीं कि ई स्पोर्ट मार्केट है एक, तो वो कैसे भेजे जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं। इंजीनियर डॉक्टर के बारे में पता रहता है, कहते हैं चलो वही जाना है, वही जाना है। सो फेज मोंगराल जैसे एक है ना, या बूगा भी है इवन, इन सब का तुम देखोगे कि ये लोग अपनी पढ़ाई वढ़ाई को सब प्रायोरिटी लेके चले एंड साइड बाय साइड ये सब करे, इसलिए तुम लोग को भी वही चीज करना पड़ेगा। अगर ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रही है तो लेजर टाइम मान करके उनको बोलना पड़ेगा कि चलो इतना पढ़ा, तुमने दिखा दिया कि पढ़ा है तुमने। पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते हैं। मेरे साथ तो यही था कि आई यूज टू स्टडी अबाउट लाइक 8 to 10 hours a day, सो जस्ट सो दैट मैं जस्टिफाई कर सकूँ 2-3 घंटे का गेम प्ले अपना। एंड उस समय ही मैं खेलता था, उसी समय मैं ग्राइंड करता था, आधा घंटा मेरा कोवैक्स रहता था, प्रैक्टिस करता था एम ट्रेनिंग, एंड देन आई यूज्ड टू गेट इनटू अरीना। एरिना से थोड़ा सा पहले यानी कि क्रिएटिव जाकर के थोड़ा प्रैक्टिस करते थे, यही होता था, ये रूटीन था, एंड ऐसे ही करके हम आगे बढ़ते थे। तुम लोग का भी ऐसे ही होगा। Bro, getting a gaming mouse, will it be worth or not? Getting a gaming mouse. डिपेंड करता है तुम्हारा प्रीवियस माउस कैसा है अभी। I mean, like normal mouse to a gaming mouse. Maybe. करना चाहिए, प्रेसिजन मिलती है। अच्छा, अरे गेमिंग इक्विपमेंट सब साहिल भैया, एक इम्प्रूव तो सवाल करती है। था। हम्म, पूछो। हेलो, पूछो ना। आई थिंक अभी वो नहीं है। चलो, मैं वही बोल रहा था, तुम्हें कोई भी डिवाइस और पेरिफेरल है, इम्प्रूवमेंट अगर करके लाते हो तो
एडवांटेज तो मिलता है। बेटर हेडसेट जैसे 5-6 हज़ार रुपए का अगर तुम रेजर के हेडसेट पकड़ोगे तुम्हें मिलेगा वो चीज़ कि तुम एक्यूरेटली ट्रैक कर पा रहे हो किसी की पोजीशन बड़े दूर दूर से, तो वो एडवांटेज है। घटिया हेडफोन पे नहीं हो पाएगा वो चीज़। तुम्हें पास आएगा एनिमी तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि आदमी आ चुका है, तुम्हें अगल बगल है, उसमें Best एक्यूरेटली ट्रैक कर पाते हो। best mouse in your opinion around 5,000 or something. Best mouse अराउंड for 5000। gaming. Yeah. कीरा ने किसी ब्रांड को पिच कर रखा है अभी तक? ब्रांड को पिच किया है हमने, बट अभी स्मॉल ब्रांड्स को ही किया है बिकॉज फॉलोइंग अभी स्टिल हमारी अभी कम है। बिकॉज वही बात है, हमारे पास इन्फ्लुएंसिंग प्लेयर्स नहीं है अभी जो फॉलोअरशिप बढ़ा सके। हम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन द मॉडल्स ताकि हम सेल्फ सस्टेनेबल बना सके इस चीज़ को एंड रेवेन्यू ला पाए, सो दैट मैं इन्वेस्टर को भी शो कर सकूँ ना कि अगर मैं उसका मनी यूज़ कर रहा हूँ इन दिस शॉर्ट टर्म, आई विल बी एबल टू रिटर्न हिज मनी completely विद इन लाइक 5 years or so। वो चीज़ मेरा चल रहा है, टीम भी ये चल रही है, तो इट्स ऑल कूल। हम यानी मैं काम हूँ, मुझे कोई डर नहीं है कि फॉलोअर नहीं बढ़े हुए हैं, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। या और कोई क्वेश्चन? हाँ भैया, वो एक टेक्स्ट हाँ। में क्वेश्चन था, मैं एक्चुअली अभी डिस्कनेक्ट हो गया था मुझको। तो वो एक टेक्स्ट में सवाल पूछा उन्होंने, ची हुआ ना करके, वो ब्रॉल हैला के बारे में पूछ रहे हैं कि मतलब उस पे ग्राइंड करना भी ठीक होगा कि नहीं होगा, मतलब उसका यूजर बेस ऐसे बढ़ रहा है तो। ब्रॉल हाला ई स्पोर्ट्स बहुत यानी कि इस पे ना अभी इंडिया में तो सीन नहीं है, बट बाहर में मैं देख रहा हूँ बहुत सीन बनते जा रहा है। अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जो यानी बाहर जाने वाला है पढ़ने वढ़ने के लिए, तो तुम्हें परस्यू करना चाहिए वो चीज़, कर सकते हो। ब्रॉल हाला वरना यहाँ पे इंडियन सीन में बहुत कैजुअली खेले जा रहा है, कम्पिटेटिव खेला जाता है, मैं भी खुद खेलता हूँ, पर उसका ई स्पोर्ट्स अभी तक नहीं देखा, मुझे देखने का है, बट इट विल बी सो फन टू वॉच। हाँ, आई थिंक ऑरस ने ही कराए हैं 2-4 टूर्नामेंट से ब्रॉल है के। ज्यादा नहीं हुआ है, वही ना। हम्म। ये सब कम्युनिटीज को हिट करने की कोशिश तो करती हैं, ट्राई करती हैं,